So today, as the routine class of the Tuesday for the postgraduate allotted to me, right from 4 p.m. to 5 p.m., we have discussed a series of the put, and that was finally 9 interactions. After going through the 9 interactions from many part of the Rasast fraternity, I am getting a lot of comments. Of course, those comments are in affirmative way. People are writing even on the YouTube of the Analytica Ayurveda, or some WhatsApp message, or even the telephone calls, and there are some good comments that we are able to get the insight knowledge of the put, and that I answered, yes, of course, it is just if you know the put system, you know the half Rasast, and it is true, no doubt about it. Then there is a lot of series of the demand. A group is asking for a series of the Sodhan. A group is asking for the Bhas. A group is asking for the Kupi Pakuras. So it is impossible to take everything in a very hurried way. So I asked them that I shall take everything, but one by one. Then with you people I discussed, and you suggested me to go through the one. PG scholar is hitting hard on the SOP. Then another is saying Sneh Kalpana, Sandhan Kalpana. Really, these are the very interesting areas where we should discuss very, very elaborately. And the same way, the deep insight, the word insight should be justified. If you are using a proper word, then a word must be justified. The insight means insight, not the syllabus. Okay? Fine. So, we will start with the Panchvid Kasaya Kalpana. Probably you people are on, probably next Tuesday is the holiday of the Dasahara, and then there will be some holidays preparatory for the Deepavali, and then there may be after Deepavali Chhath Puja. But whenever there will be Tuesday, and if 1 or 2 will be available to me, we shall continue. If I am here, that is also a condition. Okay. So we will start with the Panchvid Kasaya Kalpana, but not today. Today I want to engage you with some different canvas, different panorama. As what happened, yesterday was a summer, and in the night there was rain. कितने लोगों को पता है कि कल रात को बनारस में बारिश हुई है? अरे वाह, सबको पता है. बहुत जल्दी हो गई थी, 10 ही बजे हो गई थी, 10:30 बजे हुई थी. पहले तूफान आया था, तो तुम सब लोग पढ़ रहे थे ना. अब इस प्रश्न के उत्तर पर तो सभी लोग हंस रहे हैं. मतलब इफ़ इट इज़ 10:30 एंड देयर इज समथिंग रेनी एंड स्टॉर्मी, means कि you are engaged with your studies. Okay. हाँ, उस समय नहीं करना चाहिए ना. जब तूफान आए तो नहीं पढ़ना चाहिए. वेरी स्मार्ट गर्ल, गुड. तो उस समय किताबों को बंद करके तुम लोग हॉस्टल के बालकनी में आ गए थे अपने अपने घर के. गुड. चलो. सो आई थॉट कि आई शुड डिस्कस समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू टुडे for next 40 minutes, on which I emphasize very much, really on which I emphasize very much. That is the how to improve yourself. And here is the word, not the subject, sorry,
subject knowledge of the Rasas and the Bhaishaskalpana, you know very well, and you have a bundle of books, and Google Gyan is there, and the many those I mean to say portals are there where you can get all your Ayurvedic wisdom, Gyan, fine. Other things are also available. Wherever you want to know something, the Google is available. Okay? But here I want to discuss something, how to improve yourself. So how much of you are knowing the name Rajdeep Sardesai? Rajdeep Sardesai. अरे एक भी नहीं जानता इस नाम को यहाँ. तो राजदीप सरदेसाई को आज मैं अपने ट्विटर हैंडल पर डालूँगा, उनको टैग करके, कि प्रभु थोड़ा और काम करिए. आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रसशास्त्र विभाग के पूरे पीजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग नहीं जानते. अब गूगल में तो आप ढूंढ ही लेंगे कि अगर आप 10 लोग में से कोई भी जो ऑल इंडिया से हैं, उत्तराखंड से लेकर केरल तक, ये बताता है कि आप जनरल अवेयरनेस में कितने प्रवीण हैं, मास्टर हैं. इफ़ आर नॉट नोइंग द राजदीप सरदेसाई, इवन व्हेन द वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन, ओके, राजदीप सरदेसाई इज अ वेरी famous name in the field of journalism, specifically all the current affairs, and he is a very fan of the cricket. आप अब अपना गूगल देखेंगे तो उसको आपको राजदीप सरदेसाई. अच्छा, आप लोग तो अब क्या पूछें, आपका एसिड टेस्ट तो ले लिए, एक ही बार में हो गया. इफ़ यू आर नॉट नोइंग, अच्छा ऐसे ही पूछ लेते हैं, बरखा दत्त को कितने लोग जानते हैं? हाँ, एक देखें, हमने लगा ना कि ये जानता होगा. बरखा दत्त को जानते हो लेकिन राजदीप सरदेसाई को नहीं जानते हो. चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी चॉइस. ठीक. अरे तो राजदीप सरदेसाई की बहुत भारी चीज़ें हैं. ठीक है, चलो आई एम कमिंग टू द पॉइंट. मतलब आप जनरल अवेयरनेस रहना चाहिए. मुकेश अंबानी को कितने लोग जानते हैं आप में से? मुकेश अंबानी, अरे एक भी नहीं ऐसा है. कल्पना नहीं जानती है मुकेश. जानती हो कौन है मुकेश अंबानी? बिलियनियर है, बस इतना ही परिचय है. मैंने पूछा कौन है मुकेश अंबानी, चलो बताओ. मैं पूछूंगा कौन है कल्पना भगत, तो तुम बताओगे कि मैं MD आयुर्वेद रसशास्त्र भैषजकल्पना काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष की रेजिडेंट हूँ. ठीक है. तो तुमसे मैंने पूछा कि हु इज़ मुकेश अंबानी, तो आप क्या उत्तर क्या होगा? जोर से बोलिए. तो इन्होंने यही बताया कि मुकेश अंबानी बिलियनर हैं, करोड़पति हैं. इनके हिसाब से मुकेश अंबानी एक करोड़पति हैं. शिवाक्षी, हु इज मुकेश अंबानी? इज अ फेमस बिजनेसमैन. एनी अदर 2-3 sentences or the words for him? That I want to listen. मैं खुश हुआ, मोगाम्बो खुश हुआ, मुझे थोड़ी शांति मिली कि कहीं मैं घबरा रहा था कि कहीं तुम भी यही न कह के रह जाओ कि बस एक करोड़पति है और बिजनेसमैन है. ठीक है, फाउंडर ऑफ रिलायंस. बट ही इज नॉट फाउंडर ऑफ रिलायंस. फाउंडर ऑफ रिलायंस इज हिज फादर धीरू भाई अंबानी. बट ही इज द फाउंडर ऑफ जियो. ऑल दैट मीन्स अभी कल की जो फोर्ब्स की लिस्ट आई है 2 दिन पहले, सिद्धार्थ बाबू पढ़ते हैं थोड़ा जी, वो राजदीप सरदेसाई को नहीं जानते, वो एक चांस की बात है. ठीक. तो नंबर 1 पे मुकेश अंबानी है इस समय. तो मैंने कल एक इंटरव्यू 5 मिनट का सुना. किसके बीच में? मुकेश अंबानी और राजदीप सरदेसाई के. और वो जानते हो, वो जो इंटरव्यू है ना, रश्मि के पास है लेकिन तुम लोगों को नहीं दी है. पक्का? तो रश्मि उस इंटरव्यू को ज़रा आपसे ग्रुप में अभी डालो. तो अब रश्मि को थोड़ी प्रिविलेज है तो इनके पास है वो, उसको अपने इसके पूरे ग्रुप को इस इंटरव्यू में पूरे जो तुम लोग का एक व्हाट्सअप ग्रुप है ना, बड़ा सीक्रेट वाला, जिसमें कि किसी मास्टर की एंट्री नहीं है ना, उसमें डाल दो. डाल दिया? अब इसको तुम लोग घर जाके सुनना. डाला कि नहीं डाला?
फेसबुक का है ना लिंक, ठीक है। अभी 5 मिनट का है सिर्फ, ओनली 5 मिनट, लेकिन ज़रूर सुनना। और मुझे इस कैमरे पर भी बोलते हुए बिल्कुल झिझक नहीं हो रही है। ये इतना बढ़िया इंटरव्यू है कि मैंने इसके लिंक सेक्रेटरी साहब को भी भेजी, अपने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सेक्रेटरी साहब को भी मैंने इसकी लिंक भेजी है। नहीं, वो खाली उसमें उतना नहीं है, मुझे वो नहीं सुनना है। आप तो खाली अपने मतलब का ही सुन रहे हैं ना। उस 5 मिनट में आपको जो बात फिर से सुनिएगा जा करके जब क्लास ख़त्म होती है। तो ये इतना बढ़िया इंटरव्यू है कि मैंने जो आयुर्वेद में जो टॉप मोस्ट, मैंने वाइस चांसलर NIA DU को भेजा, वाइस चांसलर जोधपुर को भेजा, वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र को भेजा। जो भी मुझे समझ में आया कि वो लोग सुनेंगे और इसको गुनेंगे, ऐसे 4-5 लोगों को खाली भेजा। डायरेक्टर ITRA अनूप ठाकर को भेजा, उसमें एक रश्मि भी है, देख लो कितनी प्रिविलेज है, किस कैटेगरी में आई है। अरे कोई ग्रुप नहीं है खाली तो वैशाली के पास भी होगा, लेकिन वैशाली ने तो देखा ही नहीं देखा ना। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है उसको, तो मैंने व्हाट्सअप भेजना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उसके पास फुर्सत ही नहीं है। एनीहाउ, तो ये मतलब सेलेक्टेड लोगों के पास मैंने भेजा। इसमें है क्या, एक भारत का सबसे सफल उद्योगपति के जीवन के कुछ 3-4 बड़े अनछुए पहलू हैं। उनसे पूछा गया कि आप जब अपने एक क्वार्टरली प्रॉफिट को छोड़ देते हैं एक बार दिमाग से, तो आप क्या करते हैं, समय अपना कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की। तो उन्होंने कहा कि हम किताबें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? किताबें पढ़ते हैं। और क्वार्टरली में बहुत नहीं सोचता, मुकेश ने कहा। वो सब बाकी पूरी टीम लगी रहती है क्वार्टरली प्रॉफिट गिनने के लिए, मैं थोड़ा रिलैक्स रहता हूँ। अब मुझे जब समय मिला तो मैं क्या पढ़ता हूँ? किताबें। मैं आपके सामने 15 किताबें लेके आया हूँ। एक एक चीज़ का जस्टिफिकेशन है। आज के 40 मिनट का जो हमारा इंटरेक्शन होगा एकदम अलग होगा, रससाज भैंस कल्पना से अलग होगा। मैं आपके सामने 15 किताबें ले आके आया हूँ। 15 है, काउंट कराई थी मैंने अपने चैम्बर से यहाँ आने के पहले। कितनी है पढ़ना? 50। ये किताबें आपका जीवन बदलती हैं। ये किताबें आपकी सोच बदलती हैं, सोच बदलता है तो जीवन बदलता है। फिर उनसे पूछा गया कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि आजकल तो ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म की पढ़ता हूँ, वेदांता, भगवंत, ये सब पढ़ रहा हूँ। हाँ, एज हो जाती है, पढ़ना चाहिए। और क्या पढ़ते हैं? बोले मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ता हूँ। मुझे कल पता चला कि ही इज़ केमिकल इंजीनियर, ही इज़ बीटेक। कौन? मुकेश अंबानी। ठीक है, आप MD आयुर्वेद शास्त्र कर रहे हैं तो कल को आप डाबर खोल सकते हैं। वही है ना, रिलायंस क्या करती है? सारा केमिकल रिफाइनरी यही सब है ना। क्यों? तो ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए कॉलेज इन द मुंबई, 4 साल। तो बोला कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और अपने साइंस टेक्नोलॉजी की किताबें आज भी पढ़ता हूँ। ठीक। फिर उनसे पूछा गया कि आप का खाना सबसे अच्छा क्या है? तो कहा इडली सांभर। मुझे भी आश्चर्य लगा कि गुजराती आदमी, मैं सोच रहा था कहेगा खाखड़ा भाखड़ा या ढोकला, हाँ, या वो सवेरे का जब भजिया, और एक बहुत अच्छा नाश्ता होता है। जब भी मैं जा रहा हूँ ना, कल ही जा रहा हूँ, हाँ, वो जलेबी तो रहती है। कल मैं फिर से जा रहा हूँ उसी प्रदेश में, तो खाएंगे गाठिया, ठीक है, और ऊंधिया। तो मैंने कहा कुछ मुकेश भाई ऐसा कुछ बताएंगे? तो बोल रहे हैं इडली सांभर। मैंने कहा अरे ये कहाँ से परिवर्तन हो गया? तो उन्होंने बताया कि जो वो 4 साल अपने केमिकल इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ रहे थे मुंबई में, तो वही मैसूर कैफ़े उनके कॉलेज के बगल में है, और वहाँ से वो इडली सांभर खाते थे। और आज भारत के सबसे बड़े उद्योगपति हो करके भी वो उसी कैफ़े में जा करके इडली सांभर खाते हैं। उनसे पूछा गया कि इससे आपको कोई मतलब, आप तो अब आप हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जाता हूँ, बैठ के खाता हूँ अपनी उसी जगह। तो इससे क्या सीखे आप?
सिंप्लिसिटी, विचारों की उदारता। और कहे कि नहीं तो मंगवा लेता हूँ, नहीं जा पाता हूँ। तो आप बनारस में 3 साल 4 साल, किसी को तो 7-8 साल हो गया। ये लोग जो हैं, कोई ऐसा जगह है जहाँ कि आप पसंद किए हो कि हम जा कर के वहाँ यही चीज़ खाते थे? आपकी मेमोरी में कोई आपसे अगर 20 साल पूछे, आप कहीं बहुत बड़े पद पर कहीं हो, तो शिवाक्षी से पूछे कि बनारस में आप कहाँ जा कर के खाती थी कुछ, तो शिवाक्षी क्या बताएंगी? इन लोगों को तो बनारस का खाना ही नहीं पसंद है। तो प्रीति, आपको क्या है बनारस में ऐसी कोई जगह? समोसे, बीटी के समोसे, विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वविद्यालय के समोसे। तुम्हारा क्या है सिद्धार्थ? बीटी के गोलगप्पे। ब्यूटी के गोलगप्पे, वो जो रविंद्रपुरी की धूल वाली रोड पे, उससे कितना धूल जो मतलब कि, अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब एक आपके खाने की चॉइस है। चलिए, मैं इन सब चीज़ों को एक पर्पस से बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई आप अपना टाइम कैसे निकालते हैं? अब मुख्य मुद्दा आता है। तो बोले कि मैं अपने जो हमारे बेटे हैं 25-26 साल की उम्र के, 2 बेटा और 1 बेटी, मैं उनसे बात करता हूँ और उनके दोस्तों से बात करता हूँ। और ये बहुत अच्छा है कि हमारे घर में जो उनके दोस्त हैं, उनके 3 संतानों के, वो सोसाइटी के हर क्लास से हैं। माइंड इट, सोसाइटी के हर क्लास से हैं और हर प्रोफेशन से हैं। हर क्लास और हर प्रोफेशन से है। इसका क्या मतलब हुआ? वो ये कहना चाह रहे थे कि वो 25 साल के लड़कों में, 25 से 30 साल के लड़कों में, 25, 26, 27, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग सभी, जो ऊर्जा है, द एनर्जी दे पॉसेसेस फॉर देयर रेस्पेक्टिव डिफरेंट प्रोफेशन, to get the advancement, to be skilled, to get the empowerment in that particular field of knowledge, that is admirable. क्योंकि वो जो 25, 26, 27 साल के जो बच्चों से वो बात करते हैं, तो देखते हैं कि उनके अंदर कितनी ऊर्जा है और वो कितने उत्साहित हैं कि वो कौन सा नया भारत बनाना चाहते हैं। ये सुनकर के ही मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब आपकी क्लास में जब मैं आऊँगा तो इस सेंटेंस को दोहराऊँगा। आपकी एवरेज एज कितनी है? यही एवरेज एज मैंने कहा, और अगर ज़्यादा गर्ल्स हैं तो और कम हो गई। इमेजिनरी में, ओरिजिनली तो जो भी हो, और मेजॉरिटी गर्ल्स की ही है। कितने हैं? बेचारे लड़के 2 कोने में बैठे हुए हैं, ठीक है। कभी सुधा कुलकर्णी का एक इंटरव्यू मैंने सुना था। कौन सुधा कुलकर्णी? हुई सुधा कुलकर्णी? यस, गुड रश्मि, इज्जत रखी तुमने हमारी, ठीक है। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति की वाइफ। वो ये बोले कि जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गई तो 598 बॉयज़ के बीच में 1 लड़की थी, 1, और विदाउट एनी लेडीज टॉयलेट इन द कॉलेज। शी सेड इट, शी मेंशन्ड इट। अब देखो, अब मेरा बॉयज़ हॉस्टल नागार्जुन, जिसमें तुम लोग रहती हो, द सी चेंज। हाँ, हम लोग, मैं एक बार ऐसे ही कहा था कि भाई अब तो हम अपने हॉस्टल में जा ही नहीं सकते। जब मैं ज्वाइन किया तो गया था 58 नंबर देखने अपना, हाँ, कि हाँ क्या है। जब मैं यहाँ लेक्चरर होकर आया गुजरात से, तो आफ्टर ज्वाइनिंग इन द डिपार्टमेंट आई वेंट टू द हॉस्टल टू सी माई रूम 58। तो उस दिन तो मैं जा सकता था, आज नहीं जा सकता, ठीक है। हाँ, एक आध बार गया था जब चेयरमैन एंटी रैगिंग था तब। मतलब क्या, गर्ल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है। BHU में सारे बॉयज़ हॉस्टल कन्वर्ट हो जा रहे हैं किस में? गर्ल्स हॉस्टल में। चलो, तो क्या करिए कि सुश्रुत भी बदल जाएगा एक दिन। हाँ, खतरनाक इरादा है प्रदीप और सिद्धार्थ, संभल के रहो। ये लड़कियां कह रही हैं कि एक दिन हम लोग सुश्रुत को भी बदल देंगे गर्ल्स हॉस्टल में, 7 मंजिला, ठीक है। चलो, आजकल यही है कि IMS के ग्रुप पे डॉक्टर्स का जो हम लोगों का है, उसमें यही सब गिनवाते हैं कि न्यूरो में 4 लड़कियां आई हैं, कार्डियो में 4 में 3 लड़कियां आई हैं। सब इसी बात से
हैरान परेशान हैं। हम लोग को, आप लोग खुश हुई, हम लोग भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब हैरान परेशान इसलिए है कि पूरी मेजॉरिटी 70% रेजिडेंट्स इस समय IMS के गर्ल्स हैं। तो ये काबिल तारीफ बात है। चलिए, सो उन्होंने कहा कि वो जो उनके अंदर ऊर्जा है, तो मैंने सोचा कि ज़रा मैं अपने यहाँ का ऊर्जा मीटर देखूँ, रसशास्त्र की, इधर से शुरू करूँ। इतनी ऊर्जा है इनके अंदर, कितनी ऊर्जा है इनके अंदर, इनके अंदर इतने अंदर, इनके अंदर, इनके अंदर, कहीं ऊर्जा मुझे दिखती ही नहीं है। आई एम सॉरी टू से इट, बट आई एम सेइंग इट। द वे ही मुकेश भाई एम्फेसाइज्ड, मुकेश अंबानी ने जिस तरह से कहा कि वो जो ऊर्जा देखते हैं उन नवयुवकों में कि वो देश के लिए और अपने प्रोफेशन में क्या करना चाहते हैं, काश वो ऊर्जा मुझे आयुर्वेदाचार्यों में भी दिख जाती। मैंने यही नोट लगा के भेजा है सेक्रेटरी साहब को, ये इंटरव्यू एकदम। और जितने भी ये टॉप ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, वाइस चांसलर, डायरेक्टर, कि वो एक हिंदी फिल्मों का गाना है ना बच्चों, क्या है, कौन सा, वो परी कहाँ से लाऊं जिसे दुल्हन तुम तेरी बनाऊं। लेकिन अब तो उल्टा चलेगा कि वो दूल्हा कहाँ से लाऊं जिसका, नहीं, वो लड़का कहाँ से लाऊं, राजा कहाँ से लाऊं। चलो, वो शाहिद लुधियानवी फिर वो गीत लिखेंगे। मैं जो बात कर रहा चाहता हूँ, द पॉइंट इज़ हियर टू सिंपली दैट एनर्जी वो आनी चाहिए। इसलिए मैंने सिर्फ हेड ऑफ द आयुर्वेद के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को भेजा कि ये देखिए कि ये 25 ईयर के जो दूसरे फील्ड में हैं, दूसरे प्रोफेशन में हैं, पेट्रोकेमिकल में हैं, IT में हैं, जियोलॉजी में है, जोग्राफी में, जहाँ भी हो, जिसने भी जो डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज है, तो उनका ऊर्जा लेवल है, एनर्जी लेवल, और जो हम लोगों का ऊर्जा लेवल है, आप खुद एक बार को, अब आपके पास, सबके पास वो लिंक हो ही गया है, उसको सुनिएगा और अपने ऊर्जा लेवल को नाप करके, फिर कल तो मैं रहूँगा नहीं, कल मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो जब लौट के आऊँगा तब बताइएगा कि आपका ऊर्जा लेवल कितना बढ़ा, राइट। तो दैट इज़ द नीड ऑफ आवर टू ऑप्टिमाइज द एनर्जी लेवल। ओके ओके। और बड़ी खास बात उसमें थी, उनसे पूछा गया कि आप छुट्टियां कैसे मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, उस पर विचार करिएगा, इसको ज़िंदगी भर के लिए गांठ मान लीजिएगा। उन्होंने कहा कि फॉर मी द प्लेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वेयर आई एम गोइंग फॉर द वेकेशन। 7-10 days I want to live unconnected. But for me, place is not important. Important is the company I have for the vacation. क्यों क्यों मुनीषा जी बोलिए, सही बात है कि गलत बात है? किसके साथ आप जा रहे हैं, तो क्या हुई हो, वैचारिक समानता। फॉर मी द प्लेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अरे वैकेशन के लिए ज़रूरत हो ना कि हवाई जाना है, वो मॉरिशस जाना है, सोनभद्र भी चले जाओ ना, और मॉरिशस में जाके 2 अलग अलग होटल में रहो। हाँ, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, कंपनी, द माइंड सेट, द वेवलेंथ। दिसंबर में हो ना तुम, सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। हाँ, वो ध्यान में रखना होगा। डेस्टिनेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, कंपनी इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर उनसे पूछा गया कि अरे साहब, आप अगर मान लीजिए कि नहीं बनते तो क्या करते? कहे कि मास्टर बनता, मेरा मास्टर बनने का बड़ा मन है, और अभी भी मैं मास्टरी करता हूँ विथ माई वाइफ नीता। फिर पूछा गया कि सवेरे उठ करके आप क्या करते हैं? दिस इज़ द लास्ट ऑफ द इंटरव्यू, आई एम टॉकिंग टू यू ऑल, क्योंकि इससे आप सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिए। इसमें से कुछ चीज़ें उतारने लायक हैं। ये नहीं कि खूब बड़ा हिली स्टेशन पर ही जाए, नहीं, छोटी जगह पर भी जाइए। कंपनी सही होनी चाहिए। आपका वो जो 25 साल वाली ऊर्जा को याद रखिएगा बस। इसीलिए मैंने इस इंटरव्यू को कोट किया। और
अब जो बोलने जा रहा हूँ, क्वेश्चन था राजदीप सरदेसाई का कि सुबह उठते ही आप अपना जियो नेटवर्क पर अपनी नेटवर्थ देखते हैं पहला कि क्या देखते हैं? ठीक है, तो मैं आई आस्क वैशाली विद ड्यू रिगार्ड टू हर, सुबह उठते ही तुम पहला काम क्या करती हो? नहीं बताना चाहो तो मत बताना, बट इट्स अ क्वेश्चन। चलो सिद्धार्थ, सुबह उठते ही पहला काम क्या करते हो? नहीं बताना चाहते हो मत बताओ। शायद ये कहना चाहता है हम किसी की फ़ोटो देखते हैं, मत बताओ। चलो प्रदीप, तुम क्या करते हो सुबह उठते ही पहला काम? तुम है तो पता है कि तुम क्या करते हो। चलो किसी और से पूछता हूँ। हाँ प्रीति, तुम सुबह उठती हो तो क्या करती हो? पहला काम। अच्छा, द पॉइंट इज हियर सिंपली व्हाट ही सेड, व्हाट ही मेंशन्ड, कि हमारी पूरी फैमिली में बच्चा से लेके बड़ा तक सुबह उठ के पहला काम प्रेयर करता है। द फर्स्ट वर्क इज व्हाट? प्रेयर। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डू इट, most of us do it. The first work is what? Not the Facebook like, not the WhatsApp comment, not the Analytica Ayurveda subscription, right? The first work is what? Prayer. So these things I just shared with you with the view that you may develop your persona with such a dedication, and that is the 25-year ऊर्जा। उनसे पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि आप इस तरह से रहते तो what may be the things there? तो he said कि अगर मुझे ये ऊर्जा रहती जब मैं 25 साल का था तो आज रिलायंस 10 गुना और बड़ी होती। What he said? 10 गुना वो ऊर्जा मेरे में थी ही नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं बूढ़ा आदमी इतना ऊर्जा वाला हूँ अभी, और ये जो मेरे सामने जो आयुर्वेद की पीढ़ी बैठी है उसके अंदर तो अभी मेरी वाली भी ऊर्जा नहीं आई है। शर्त लगाओगे तुम लोग कि मेरे से ज़्यादा ऊर्जा रखे हो? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। मैं जानता हूँ कि तुरंत आप लोगों को छींक आने लगती है, धूप लग जाती है, वो लगनी चाहिए। डालडा, पिज़्ज़ा, बर्गर प्रोडक्ट्स तो वो इसमें कोई बात नहीं है। नहीं भाई ठीक है, आप नहीं खाती हैं तो हम नहीं आपको कुछ कह रहे हैं। हाँ यस, शिवाक्षी में एनर्जी है, आई एंड्रोस, ठीक। तो एनर्जी लेवल का उपयोग नहीं है। वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन है। तो सो the point is the utility of that for the development of Ayurveda, for the development of rasas, for the development of passage kalpana. That is the need of our। उस एनर्जी को लगाइए, फिर देखिए आप कहाँ हैं। तो आज का दिन अच्छा गया। मेरे पास 3 खबरें हैं, हम उन खबरों पर आते हैं एक एक करके। वो क्या है 3? एक, दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये मैंने अभी भेजा नहीं है किसी को, किसी ग्रुप पे नहीं डाला है, इसमें मैंने अभी एक आज 11 साढ़े 11 बजे लाइव वीडियो किया क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभी मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा तो इसको आप देखिएगा। ये डाल तो दिया ही है, एनालिटिका आयुर्वेदा का डाल ही दिया है, तो आप लोग सुनिएगा इसको पूरा 26 मिनट। Delhi High Court urges नीति आयोग to accelerate process of integrated medical system policy। डाल के सर्च में डाल को अभी देख लो, फटाफट सब पे आ जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, लॉ ट्रेंड में छपा है, लॉ पॉइंट में छपा है। अपर्णा ने आज मेरी बड़ी मदद की, करीबन आधा घंटा इसको सर्च करने में। मैं इस PIL का नंबर जानना चाहता था बट वी फेल्ड।
क्योंकि हम लोगों को हाई कोर्ट दिल्ली में अब इसको ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने दूसरा तरीका लगाया. I wanted to know the PIL number of the advocate Ashwini Kumar Upadhyay, but certainly tomorrow I shall have, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा इसको ढूंढ मारूँगा कि कहाँ से मिलेगी, किधर से मिलेगी. राइट, या मिल गया. तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट ऑनरेबल श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी एंड इन द बेंच जस्टिस संजीव नरूला said that the Ayush systems of the medicine are wealth of knowledge. What they said? Wealth of knowledge. And we are grateful, thankful, we express our gratitude to the advocate Ashwini Kumar Upadhyay, who filed a writ petition under the categories of the PIL. What is PIL? ये PIL क्या होता है प्रदीप जी? PIL. गुड मोनिशा. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इसमें एक सार्वजनिक मुद्दे को लेकर के कोई एक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जाता है. उन्होंने जाहिर किया है कि, और बड़ी वकील साहब लोगों की भाषा अलग ही होती है. उन्होंने कहा कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू ऑनरेबल मी लॉर्ड जज साहब. ऐसा नहीं बोले होंगे, मतलब ये बोले होंगे कि मी लॉर्ड खाली. मैं तो थोड़ा ज़्यादा एडजेक्टिव लगा दिया. हाँ, तो मी लॉर्ड, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू डिमांड, टू रिक्वेस्ट दैट इंडिया नीड्स इंडियन होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम, not the, mind it, the language what I am going to speak now. Colonial segregated allopathy, Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy medical systems. I want, he, मतलब advocate, who? Ashwini Kumar Upadhyay. कि I am standing before the honorable judges of the Delhi High Court, the bench of the Chief Justice, not lower bench, that to have Indian holistic integrated medical systems. And he said, my personal experience is that I avoid my operation due to these traditional systems of the medicine. I was going to be operated for that. So we searched Aparna and I searched in the law trend and the law mind. लेकिन कितना बोल रहे हैं लोग समरी में, वो डैश 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 करके लॉ ट्रेंड ने छोड़ दिया था. अब इसकी ऑडियो भी ढूंढनी पड़ेगी. ढूंढो मुनीसा. दिल्ली हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग में जाओ और इसको कल की बहस में देखो. चीफ जस्टिस की कोर्ट में लाइव टेलीकास्ट भी आता है. बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं. लेकिन अभी हाई कोर्ट दिल्ली का है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो सुनने लायक होगा नरेशन जो उन्होंने दिया है. राइट, तो अब ढूंढा जाएगा. उन्होंने अपने कुछ एग्जाम्पल दिए. तो जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, वहाँ पर कमेंट किया कि आई एम गेटिंग अ पॉइंट हियर. और फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये क्या होते हैं? सरकार के परमानेंट वकील चेतन शर्मा जी, उन्होंने भी पक्ष रखा. और तो उन्होंने कहा कि नीति आयोग में 20 सदस्यीय समिति बनी हुई है जो कि रिपोर्ट देने वाली है कि भारत की समेकित चिकित्सा पद्धति क्या हो, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन. एंड आई थिंक आई हैव कोटेड समवेयर इन द डिस्कशन विथ यू ऑल दैट द अप टू 2030 देयर विल बी possibility that integrated medical system studies will be open in the country, in which 3 year everyone will sit all together, anatomy, physiology, pathology, form like that, and then Ayurveda, homeopathy, Siddha, Unani, as per the choice, as per the availability, as per the merit, as per the means filter will be there, and then the PG course. So for this Niti Aayog is working, and the Honorable Chief Justice Shri Subhash Chandra Sharma ji directed Niti Aayog through the Additional Solicitor General of the Government of India, Shri Chetan Sharma ji, that expedite the process of the report and submit it. And the next hearing is on 19th January 2024.
अब इसमें एक जो कायदे की बात आती है वो क्या, टर्निंग पॉइंट, इसमें दो लोग और पार्टी बन गए हैं। एक ग्रुप का नाम है मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप। अब अभी तो मत देखना डॉक्टर मनीषा, इसको आप बाद में देख के मुझे ब्रीफ करिएगा कि ये काम क्या करता है, प्रो है कि एंटी है। ट्रेडिशनल मेडिसिन के ये प्रो है कि एंटी है। तो दे डिमांडेड टू बी पार्टी मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप एंड द Patanjali Research Institute, and the Honorable Court permitted to consider them as a party. Okay? So what Chetan Sharma ji said, कि Patanjali is working on the same line. They are using the all modern diagnostics and the investigation tools and the treating with the Ayurveda. So here I, with the due respect to our Additional Solicitor General Chetan Sharma ji, that उनकी टीम वो कहाँ से उतना सर्च करें, तो उनकी टीम ऐसे यंग सीनियर एडवोकेट्स की होती है जो कि गवर्नमेंट के पैनल पर होते हैं, वो लोग सब सर्च करते हैं। आपने कभी हियरिंग देखी है लाइव सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, कभी लाइव हियरिंग देखी है, प्रोसीडिंग्स देखी है? हैं? हाँ देखी है ना, क्या होता है वहाँ? हाँ हाँ, वो सब एक एक पन्ना लेके खड़े होते हैं और वो पढ़ते रहते हैं टेबल पर, वो उनको एक एक पन्ना दिखाते रहते हैं। पूरी टीम खाली किताबें खुलती हैं वहाँ और कुछ नहीं होता है। जज साहब भी पढ़ते हैं, यस क्लॉज नंबर दिस, टेबल नंबर दिस, खाली पढ़ाई होती है। आई लाइक दैट। ठीक है, काश तुम लोगों का भी इम्तहान ऐसे ही होता है, किताब तुम लोगों के पास रहती, हम लोगों के पास रहती, पूछते हो हाँ बताइए कौन सा क्लॉज नंबर, कौन सा श्लोक नंबर, कौन सा क्या। ठीक है, एनीहाउ, सो he said that Patanjali is doing it, but before the establishment of the Patanjali, many universities are doing it, and that is the lack of knowledge to the team of the Additional Solicitor General. पतंजलि कब आई और कब से कर रही है? पतंजलि रिसर्च कब से? 15 साल से ना। जामनगर कब से है? जयपुर कब से है? BHU कब से है? उडुपी कब से है? त्रिवेंद्रम कब से है? लेकिन क्या हमने दुनिया देखी नहीं, तो हमको तो उतना ही पता है जितना बाबा रामदेव और पतंजलि बोल रहे हैं ना। ये चीज़ जो बोली गई यहाँ पर, दैट यस combination, Patanjali is doing the combination of the modern and traditional medicine in the level of education and this that। तो ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि अगर ASG की टीम, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की टीम पहले से भी देखी होती तो उसको इटरा जामनगर दिखाई दिया होता। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट चलिए सबसे छोटा है लेकिन सबसे बड़ा है भी है, एज में छोटा है ना। लेकिन अब कोर्ट में किसी भी चीज़ का मेंशन आना बहुत बड़ी बात होती है, मेंशन आना जजमेंट में या हियरिंग में, राइट। तो वहाँ नाम आया कि पतंजलि एडेप्टेबल काम कर रही है इस विधा पर। पतंजलि के उत्पन्न होने के कितने साल पहले से यहाँ हो रहा है जहाँ हम लोग बैठे हैं। यहाँ तो इस्टेब्लिशमेंट ही भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज ने इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट में ही किया था। 1904 1912 के कॉन्सेप्ट पेपर देखिए, वो यही था कि आयुर्वेदिक कॉलेज और साइंस के टीचर, आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल में मॉडर्न के फिजिशियन। लेकिन चलिए भाई, क्रेडिट गई किसको? पतंजलि। इसलिए होशियार रहना चाहिए कि क्रेडिट कहाँ जा रही है। फिर उन्होंने हेल्थ टू राइट की बात उठाई, आर्टिकल 21, आर्टिकल 39C, 41, 43, 47, 48A, 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ये अच्छी खबर थी। अब दूसरी अच्छी खबर क्या है, जानना चाहते हैं? कहाँ है वो PDF? तो ज़रा तुम भी तो उस ग्रुप में होगी कि नहीं? डॉक्टर वाले ग्रुप में नहीं होगी। आज द हिंदू में सेक्रेटरी साहब का एक इंटरव्यू छपा है। ICD देखो सबसे पहले, व्हाट इज ICD ऑफ द WHO? देखो 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 देखो, ओपन योर स्मार्टफोन्स। ICD ऑफ WHO, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ICD ऑफ द WHO? Which edition is going on now?
International Classification of Diseases. It's a standard language which is applicable all across globe through the WHO. Here is the language which may be understood by everyone. Okay? And Ministry of Ayush, specifically CCRS and the many more organizations worked hard for this 3-4 years. And there were the big conferences in the 21, 22, many more. They worked it on this project at least 3-4 years. And they converted all the terminologies of the Ayurveda. Listen, all the terminologies, they prepared the glossary which is the equivalent to the all allopathic system, nearer to them. But that is a language which may be where Ayurveda may be explained in international language. Okay? And that is really very, very going to be game changer for the acceptance of Ayurveda globally as a system of medicine. पहले हम लोग सुनते थे, थोड़ा सा मेरा संपर्क है, तो ये पूछते थे कि एक एनाटॉमिकल थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन की बात मैं सुनता था. शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ही वो टर्मिनोलॉजी थी. ज़रा देखिए, चेक करिए. एनाटॉमिकल थेरेप्यूटिक, आई एम अनेबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, लेकिन कुछ एक ऐसा इस तरीके का टर्म जब मैं WHO में गया, वहाँ से 2-4 प्रोजेक्ट्स लिए हैं. आई हैव कंप्लीटेड. हाँ हाँ, जोर से बोलो. यस, मतलब ज़्यादा ठीक है, अभी थोड़ी सी ब्राह्मी घृत लेना पड़ेगी, अभी ज़रूरत नहीं है. गुड, थैंक यू. चलिए, तो 80C क्लासिफिकेशन, फाइन. तो इसमें जो ICD का जो 11th रिवीजन आया है, उसके वॉल्यूम 1 में चाइनीज़ मेडिसिन आ गई हैं, बहुत पहले की, तकरीबन 5-10 साल हो गया. तो चाइनीज़ ग्लोबल हो गया. जापान में, कोरिया में ICD का पूरा आता है, 11th रिवीजन आया है, और उसके वॉल्यूम 1 जो अपेंडिक्स लगा है उसमें क्या आया, चाइनीज़. वॉल्यूम 2 में अभी जनवरी 2024 में क्या आएगा, प्रोबेबली जनवरी, ऐसा सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि जनवरी 24 तक ये आ जाएगा ICD वॉल्यूम 2, जिसमें कि आयुर्वेद की सारा क्लासिफिकेशंस वहाँ पर दिया हुआ है. फाइन. आयुर्वेद अभी सबको साथ लेकर चलना है. दिस क्वेश्चन इज राइट, बट इट इज़ मेजॉरिटी द आयुर्वेद. ओके. कभी कभी ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि आयुष में हम आयुर्वेद को आगे नहीं ले जा पाते हैं, बहुत सारे लोग पीछे से हम लोगों को उतनी मेहनत नहीं करना चाहते लोग. अभी मैं किसी सिस्टम का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको सबको साथ लेके चलना है ना. अब एक नया सबसे नया सिस्टम आयुष में कौन सा जुड़ा है, द न्यूएस्ट सिस्टम इन, बैठे बैठे बताइए, द न्यूएस्ट सिस्टम एडेड इन द एक्रोनिम ऑफ द आयुष. गुड, वेरी गुड, सोवारिकपा. अब उसका तो कुछ भी नहीं है अभी, उसकी तो फार्माकोपिया भी नहीं है अभी, तो उसको अभी धीरे धीरे लेके चलेंगे साथ में हम लोग. आमची तिब्बती सिस्टम ऑफ मेडिसिन. तो अभी होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा तो काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं लोग. सिद्धा का तो हॉस्पिटल ऐसा है चेन्नई में जिसका कि 5000 की OPD है. आयुर्वेद के किसी हॉस्पिटल की 5000 की OPD नहीं है. मैं धीरे बोलूँगा, अभी तो आ ही रहा. मैं धीरे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सुनना ले, मैं सुना रहा हूँ. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई की OPD जितने आयुष सिस्टम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा है पर डे की. टोटल आयुष सिस्टम, अय्या भी 2000 पे है, लेकिन वो 3000 पे है, उससे ज़्यादा एवरेज जाता है. एक बार चेन्नई जाओ तो देख के आओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई, हाईएस्ट नंबर ऑफ OPD इन द आयुष सिस्टम्स. फाइन. ये एक न्यूज़. और तीसरी क्या न्यूज़ हो सकती है, एक पहले उसके लिए एक शेर सुनाना पड़ेगा, तब बताएंगे आपको. कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से. हाँ, सिद्धार्थ सुनाएगा. सिद्धार्थ जरा इस शेर को सुनाओ पूरा. बोलो बोलो बोलो.
याद नहीं है? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? क्या तुम्हें याद है क्या? हम सोचा कि तुम इसलिए खड़ी हुई है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर को कभी से उछालो यार, ठीक है। अब आपकी क्लास में आने के पहले जस्ट आधा घंटा पहले मुझे मेल आया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से। मैंने 26 सितंबर को एक चिट्ठी लिखी थी उन लोगों को। 24 को मैं लौट के आया था, कहीं गया था मैं बाहर, अरे ऑल इंडिया ही गया था। आया 25 को एक वर्कशॉप अटेंड की यहाँ पर IPR और पेटेंट की फुल डे, और उनसे मिला था मैं प्रोफेसर उन्नत पंडित से, जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिज़ाइन एंड द पेटेंट है। 26 को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में चिट्ठी लिखी 26 सितंबर को। आज रिप्लाई आ गई, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेड। 2 days ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है यहाँ पर। तो क्या मैं कह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपके तथ्यों में दम है, आपकी बात सही तरीके से कही गई है, तो बात क्या होगी, मानी जाएगी। अभी आया आपकी क्लास में आने के आधा घंटा पहले कि दे हैव एक्सेप्टेड माई सजेशन फॉर द पेटेंट एंड द कॉपीराइट एंड हैविंग द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। और उसका एक लेवल उन्होंने और बढ़ा दिया कि नॉलेज पार्टनर विल बी द WHO CRO कंट्री। अभी वो खाली मेरे पास ही है, मैंने अभी आप लोगों को नहीं दिया है, क्योंकि वो कि ये देखिए मैंने दिखाया नहीं, मैंने दिखाता हूँ मैं, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ। आप अगर ढंग से अपनी बात उठाएं कि MD आयुर्वेद रसशास्त्र बिजनेस कल्पना का ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ उसको लीगल फाउंडेशन मिल जानी चाहिए, यहाँ उसका अपॉइंटमेंट, उसका लिए वो सीट मार्क हो जानी चाहिए, क्या नहीं मानेगी मिनिस्ट्री? मेरे पास उसी से रिप्लाई आई है कि द सेक्रेटरी हैज अप्रूव्ड ड्रग, DCC से ही आई है, ड्रग कंट्रोलर सेल से, IPR पेटेंट पर। आज ही अभी, आज क्या तारीख है? 17। चिट्ठी कब गई है? 26। कितना दिन लिया पूरा प्रोसेस करने में? हाँ, एक ही है, जिम्मेदारी BHU को न दे करके जयपुर को दी गई है इस काम को करने की। और इसलिए कि मैं स्वयं जिम्मेदारी नहीं मांगा था कि वो BHU में दी जाए। अगर मैं उसको एक लाइन लिख देता कि नहीं ये काम BHU करेगी, तो वेरी आई एम टोटली इन बिलीव दैट ऑनरेबल सेक्रेटरी मस्ट हैव सैंक्शन फॉर हियर। लेकिन अब कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके चलते कि मैंने उसको ओपन छोड़ दिया था कि ये कहाँ किया जाए। तो दिस हैज़ बीन असाइंड, और उनके रसशास्त्र के हेड को लिख दिया गया है जयपुर के, मेरे चिट्ठी का रेफरेंस देते हुए, मेरी चिट्ठी लगा करके कि आप करो इस काम को। हमारा हेड रसशास्त्र जयपुर के कहेंगे कि सर एक ठो हमारा काम और बढ़ा है। नहीं, ही विल नॉट से लाइक दिस, ही विल बी फील हैप्पी रियली, जैसे आई एम जोकिंग कि उन्होंने वो कहेंगे कि नहीं एक काम और बढ़ गया। नहीं, he will feel proud that he is going to do all these things, right? So these are the some good news of today. WHO, दिल्ली हाई कोर्ट, मंगलवार को बहुत मंगल हो गया सब आयुर्वेद का है, और पेटेंट के ऊपर WHO CRO के साथ, और देन इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई और मुकेश का, और 15 किताबें ये धरी रह गई, बच गया 5। अब इन 15 किताबों को फिर लेंगे कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। जैसे कि अगर मैं हेडिंग से खाली पढ़ना शुरू करूं तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी है, ये यू कैन है, ये अरे भाई हाँ, वेयर देयर इज़ अ लाइट है, ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आज आपको ढंग का पिज़्ज़ा खाने को नहीं मिला है तो आप इमोशनली डाउन हो जाते हैं। अभी दोस्तों से तो झगड़े की बात अलग है, खाना ढंग का नहीं मिला तो आप क्या हो जाते हैं, इमोशनली डाउन हो जाते हैं। ठीक, ये तो एक बहुत शानदार किताब है, कई बार पढ़ी जा चुकी है। ऑटोबायोग्राफी अभी होगी, पढ़ा शिवाक्षी? कभी पढ़ना। अरे ये तो अभी मैंने ली है जस्ट सितंबर में, ये सबसे लेटेस्ट बुक है जो मैंने ली, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये तो पढ़ी थी ना, मैनेजिंग स्ट्रेस एट वर्क। कितना तनाव में रहते तुम लोग, भस्म नहीं बनी, तेल जल गया, अवले जो है वो
हम जब फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे रहे थे ना तुम लोग की तरह से, तो वासावले मिला था फर्स्ट ईयर में। बोलूँ ना आगे नहीं बोलते हैं। तो ये क्या है, मैनेजिंग स्ट्रेस एट वर्क। और क्या है, व्हाट द हेक डू आई डू विथ माई लाइफ। पढ़ते रहा करिए, पढ़ते रहा करिए। ये सब पढ़ने से ही ऑन डाइवर्सिटी, ये क्या हुई, ऑन कैरियर रेजिलेंस, ये सब मैं किसी लाइब्रेरी से लेके नहीं आया हूँ, सब मेरी है। ऐसे देख रहे होगे जैसे कहीं लाइब्रेरी से इशू कर रहा हूँ, तो कहाँ से निकाले सीधा। हाँ ठीक है, ये बोलना भी ज़रूरी है ना, ऑल दीज थिंग्स। ये देखिए, ये बड़े बड़े हार्वर्ड के हैं, द मैनेजमेंट आइडियाज़ फॉर योर ईयर फ्रॉम द हार्वर्ड बिजनेस सेंटर। तब मास्टर जब अगर एनर्जी में रहे तो बच्चे तो अपने आप एनर्जी में हो जाएंगे। ये देखिए, ये 2021, अरे वाह, एनर्जाइज योर माइंड। भारतीय लेखकों से लेकर के विदेशी लेखकों तक सब हैं। व्हाट इट टेक्स लेसन इन द परसूट ऑफ एक्सीलेंस। क्या आप खोते हैं परफेक्शनिस्ट में, जो मैंने खोया है बहुत। परफेक्शन के चलते इतनी सारी बीमारियां ले ली। काम परफेक्ट चाहिए, इसलिए स्ट्रेस, और स्ट्रेस के बाद बीमारी। आगे चलिए, लास्ट, ऐसी भी किताबें पढ़नी चाहिए जो इंडिया की जियो पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन कराती हों। हैं मेरे पास बहुत, शेखर गुप्ता के वॉल्यूम्स उठा। शेखर गुप्ता का तो नाम सुने होंगे ना तुम लोग, नहीं सुने हो? हे भगवान, शेखर गुप्ता ढूंढ लेना। राजदीप सरदेसाई से भी बड़े जर्नलिस्ट हैं। उनका एक रोज़ रात को 10 बजे प्रोग्राम आता है, कट द क्लटर। कट द क्लटर बहुत सुनने लायक होता है, बहुत नॉलेजेबल। आई ऑलवेज हियर दैट। और उसी के टर्न पर मैंने एनालिटिका आयुर्वेदा में वो रखा है अपने चैनल का नाम, ब्रश द बुशेस। उसकी ओरिजिन कहाँ से है? कट द क्लटर। मुझे बताने में कोई बात नहीं है, मैं तो जहाँ से कोई आइडिया मिलती है तो मैं बताता हूँ। कट द क्लटर, क्लटर्स को साफ करो। तो मैंने वही आयुर्वेद में शुरू किया, ब्रश द बुशेस, झाड़ियों को हटाओ। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आई होप यू हैव एंजॉयड द something else from apart from the rasas and the Bhaishaj Kalpana. Maintain your personality, sky is your limit. Thank you.